Okay बेटा, let us start a new topic which is straight lines. Okay, coordinate geometry का आपका पहला टॉपिक है क्लास 11th का. So straight lines टॉपिक में जाने से पहले we'll revise what we have learnt in our lower classes. So 10th class में हम 3 टॉपिक्स देख चुके हैं. Coordinate geometry में there are 3 basic formulas that you have learnt in your 10th class. So what are those? First is distance formula. याद है? Second is section formula. And third is area of triangle formula. So these are the 3 formulas that you have learnt in your 10th class. तीनों formulas थोड़ा सा याद करेंगे, उसके ऊपर कुछ sample questions करके we'll go to our topic of straight lines. Okay. So what is distance formula? So if you have 2 points A, x1, y1 and B, x2, y2, if you have 2 points x1, y1 and x2, y2, the distance सर बोलिए बेटा. सर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस So if you y2 have माइनस y1 का 2 होल स्क्वायर. points, so distance is root of x2 minus x1, difference between the x coordinates whole square plus difference between the y coordinates whole square. Okay. And in a special case, if you want distance from origin, so if you want distance from origin of point P x comma y, the answer is directly square root of x square plus y square. सही है क्या नहीं? Is it okay? So if you have 2 points, 2 different points, the distance is square root of difference of x coordinates whole square plus difference of y coordinates whole square. And distance from origin is directly root of x square plus y square. And section formula क्या बोलते हैं? So if you have 2 points AB, x1, y1 and x2, y2, you want a point P which divides AB in the ratio m is to n. So P का coordinates क्या है? याद है formula? Yes, sir. सर mx2 कांस्टेंट लगेगा एक. क्या कांस्टेंट लगेगा? mx2 प्लस nx1 by m plus n. याद है फॉर्मूला? m Yes. by 2 plus n by 1 by m plus n. Okay. So this is for internal division. ये 10th क्लास का टॉपिक से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ. अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ लीजिए. आई एम अज्यूमिंग दैट यू नो. p डैश एक और फॉर्मूला है mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n, my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n. ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो कौन सा पॉइंट आएगा? Again you will get a External. point which divides AB in the ratio m is to n, but externally. Okay. So एक internal division के लिए फॉर्मूला है, एक एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला है. ओके. क्लियर है क्या नहीं?
Is it clear? Yes. So internal division का मतलब है the point will lie in between A and B on the line segment A and B, right? External division का मतलब है इसी लाइन सेगमेंट पे होगा, सॉरी इसी लाइन के ऊपर होगा, बट आउटसाइड द लाइन सेगमेंट ए बी. मान लीजिए P डैश यहां हो सकते हैं. दिस लेंथ by this length is M and N. Okay. Okay. So if you want a point P which is interior to AB and divides AB in the ratio M is to N, आपको ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना है. अगर एक्सटर्नल डिवीजन वाला पॉइंट चाहिए तो नीचे वाला पॉइंट यूज करना है. ओके. And what is an important point which you need to understand here in terms of division? External division can be thought of as a negative ratio. Okay. External division can be thought of as a negative ratio. We can also ask you, what is the point P which divides AB in the ratio -2:3? -2:3 का मतलब क्या है? 2:3 externally. Okay. Next you have area of triangle formula. मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है ABC. If you have a triangle ABC, x1 y1, x2 y2, x3 y3, अगर ये 3 पॉइंट्स है. ओके. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू यू हैव समथिंग कॉल्ड ए स्टेयरकेस फॉर्मूला. ठीक है. आपका टेक्स्ट बुक में जो आप पढ़े हैं दैट इज x1 टाइम्स y2 माइनस y3 प्लस x2 टाइम्स y3 माइनस y1 प्लस x3 टाइम्स y1 माइनस y2. याद है? यस. बट इसी फॉर्मूला को आप याद करने के लिए इजी मेथड है हाफ ऑफ फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, अगेन फर्स्ट पॉइंट. 4 पॉइंट, 3 पॉइंट्स है ना, आपको एक राउंड मारना है. सो फर्स्ट पॉइंट लिखना है, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, कंप्लीट द राउंड एंड गो टू द फर्स्ट पॉइंट अगेन. इसके बाद ऐसा 3 डाउनवर्ड एरोस ड्रॉ करना है. सो x1 इंटू y2 मतलब ये दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है. समझ में आ रहे? इसके बाद अपवर्ड एरोस, ये दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों नंबर्स सबको मल्टीप्लाई करके माइनस करना है. समझ में आ रहे? क्लियर? सो डाउनवर्ड एरोस जिस नंबर्स पे है उस नंबर्स को आप ऐड करना है, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है. अपवर्ड एरोस जो नंबर्स है उसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है. द आंसर यू गेट माइट बी पॉजिटिव, माइट बी नेगेटिव. आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना है. क्लियर है? सो इसलिए एक डबल लाइन ड्रॉ करते हैं. ठीक है. अंदर लाइन जो है ये ऑपरेशन के लिए, बाहर जो लाइन है वो मॉड है. So these are the 3 formulas that you have learned in your 10th class. So तीनों formulas का थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे. ओके. क्लियर है क्या? नहीं नोट कर लीजिए सारा. नोटेड सर.
तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का थोड़ा सा प्रैक्टिस कराता हूँ। निकाल रहा हूँ ये पेपर। So first question, you have a triangle A, B, C, point 11, 2, 3, 5, 7. So I want the area. Okay. So area का फॉर्मूला देखिए कैसे आप निकालना है। एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ऐसे ड्रॉ करना है। स्टार्ट विद एनी पॉइंट, आपके हिसाब से कोई भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। 1, 1 से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट। व्हाट इज सेकंड पॉइंट? 2, 3। थर्ड पॉइंट क्या है? 5, 7। एंड अगेन देखिए एक राउंड में जाना है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, एंड यू कंप्लीट इट by writing the first point. Okay. Next, what you need to do, you need to draw the downward arrows. So multiply कर लीजिए। 1 into 3 is 3, 14, 5 into 1 is 5. ये तीनों को क्या करना है? ऐड करना है। ओके। एंड अपवर्ड एरोस देखिए क्या क्या नंबर्स है? 2, 5 3s are 15, 7 1s are 7। ये तीनों को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना है। सो व्हाट इज द आंसर? सो एक और लाइन ड्रॉ करना है। द सेकंड vertical lines denote the modulus function. So answer is half times mod of, देखिए कितना आ रहे हैं? 22 minus 24, right? So modulus of -2, 2 by 2 is equal to 1. Okay. समझ में आया? So this is how you apply what is called, this is called staircase formula. फॉर्मूला समझ में आ रहे? Depending on the order of points that you take, you might get a positive value or a negative value, but you always have to consider the positive value because this is the area, so square units. Okay. समझ में आ रहा है बेटा? रेस्पॉन्ड करिए, आगे जा रहा हूँ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this formula can also be extended to find the areas of polygons also. मान लीजिए आपको एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए, इस स्टेयरकेस फॉर्मूला यूज करके आप क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ। So find the area of a quadrilateral formed by points -1 3, 1, 5, 4, 7 and -3, -4। ओके, ये 4 पॉइंट से जो क्वाड्रिलेटरल बनता है उसका एरिया चाहिए। सो लॉजिक क्या है?
इस एरिया को भी आप स्टेयरकेस फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं, सही कि नहीं? सो कैसे यूज करना है ध्यान दे दीजिए. The thing you need to remember is while using staircase formula, the points have to be written in either clockwise or counterclockwise direction. Clockwise or counterclockwise direction. ये जनरल रूल है. ओके, इसका मतलब क्या है? आप डायरेक्टली अपने मर्जी से जो ऑर्डर में मैं दिया हूं उस ऑर्डर में लिख नहीं सकते हैं. सो फर्स्ट आपको फर्स्ट स्टेप क्या है? जो भी पॉइंट्स दिया है उसको रफली प्लॉट करना है. सो टेक ए ग्राफ शीट एंड रफली प्लॉट द पॉइंट्स. मान लीजिए ये वाला पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है. सो -1, 3 मान लीजिए यहाँ है. 1, 5 मान लीजिए यहाँ है. ओके, 4, 7 4, 7 थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं, नंबर थोड़ा सा मैं कम करता हूँ, 4, 4 करता हूँ. ओके, so let this be 4, 4 somewhere here, and the point is -3, 4 -3, -4 will be somewhere here, right? So इस पॉइंट को A, अगर B, अगर C, D मान लिया तो as you can see the order of the points given is right. आप देख सकते हैं A के बाद B आया, B के बाद C आया, C के बाद D आया. इसका मतलब है पॉइंट्स अच्छा सा कौन सा डायरेक्शन में दिया है? कौन सा डायरेक्शन है ये? Which direction is this? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? The points are nicely given in clockwise direction, right? Yes or no? Yes, sir. बट ये हर बार देने का जरूरत नहीं है. मान लीजिए ये पॉइंट्स थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा मिक्स होके दिया है, तब भी आपको you have to plot the points and look at the correct order of the points when you construct a quadrilateral. Okay, so area क्या होगा? Half of staircase containing points in a fixed order. So एक पूरा राउंड मारना है. कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट यू हैव टू कंप्लीट द राउंड. आप पॉइंट्स को क्लॉकवाइज मान लीजिए लिखते हैं, द आंसर यू गेट विल बी नेगेटिव. अगर पॉइंट्स को काउंटर क्लॉकवाइज लिखते हैं, द आंसर यू गेट विल बी पॉजिटिव. वो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आ रहे हैं वो भी मैं बोल रहा हूँ. व्हेन विल द आंसर सर बी नेगेटिव? हाँ बोलिए. सर अगर क्लॉकवाइज लिखेंगे तो नेगेटिव आएगा, पर नेगेटिव का फर्क तो नहीं पड़ेगा सर? हाँ, बाद में फर्क नहीं पड़ेगा, मैं वो बोल रहा हूँ. क्योंकि सर अब मॉड्यूलस नेगेटिव, एरिया है सर, एरिया. राइट. तो जस्ट आई एम टेलिंग यू when you get negative numbers, when you get positive numbers. Okay, so negative numbers कब आएगा? अगर क्लॉकवाइज. पॉइंट्स को क्लॉकवाइज लिया तो, एंटी क्लॉकवाइज लिया तो पॉजिटिव. पॉजिटिव आ जाएगा. क्लियर? सो मैं क्लॉकवाइज लेके दिखाता हूँ, नेगेटिव आएगा. सो -1, 3, 1, 5 सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज 4, 4, फोर्थ पॉइंट इज -3, -4. यू हैव टू कंप्लीट द राउंड. सो वापस -1, 3 पे आना चाहिए. क्लियर? सेकंड लाइन इज फॉर मॉड्यूलस. ओके, सो डाउनवर्ड एरोस लिखना है, जो भी नंबर्स आएगा सबको ऐड. दैट्स इक्वल टू हाफ ऑफ, देखिए, -5 + 4 -16 -9. मतलब जो साइन आएगा वही साइन लिखना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट दूसरा क्या है? अपवर्ड एरोस.
So 1 into 3 is 3. So minus 3 लिखना पड़ेगा. 4 into 5 is 20. So minus 20. Minus 3 into 4 is minus 12. Minus of क्या होगा? Plus 12. Minus 1 into minus 4 is plus 4. So minus of plus 4 is minus 4. समझ में? Clear है क्या नहीं? That is equal to half of number. Calculate कर लीजिए. देखिए पॉजिटिव नंबर आ रहा है क्या नेगेटिव नंबर आ रहे हैं. नेगेटिव नंबर आ रहे हैं ना शायद. सो 12 प्लस 4 16 माइनस 16 तो कैंसिल हो गया. -60 आ रहा है. माइनस 60 एंड एक और मॉड भी लेना पड़ेगा ना. सो आंसर इज 30 स्क्वायर यूनिट्स. सही है क्या? माइनस 60 आ रहे हैं. इतना बड़ा. सर माइनस 41 आ रहा है सर. 41 आ रहा है ना. यस सर, माइनस 41. So basically 41 by 2 square units. 20.5 square units is the of this quadrilateral. Okay. अब मान लीजिए यही पॉइंट्स जो है काउंटर क्लॉकवाइज में लेते हैं. कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं. यू कैन स्टार्ट विथ डी, यू कैन स्टार्ट विथ सी. जस्ट हैव टू कंप्लीट द राउंड. ओके. आपको नंबर डायरेक्टली प्लस 41 आ जाएगा. क्लियर है क्या नहीं? अनुजित कुछ बोल रहे. 1 2 3 2 3 1 3 1 2 ये क्या है? Sir, it is the sequence of the area of the triangle. हाँ मतलब कोई भी ऑर्डर में ले सकते हैं आप. मतलब ऐसे जरूरत नहीं कि कोई स्पेसिफिक ऑर्डर में लेना है. वही पूछ रहे ना आप? Yes, yes, sir. हाँ. सो ट्रायंगल में आपको डायग्राम ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है. क्योंकि ट्रायंगल में आप कैसे भी ले लीजिए, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर आ जाएगा. बट फॉर हायर डिग्री पॉलीगन्स you have to first plot them, find the general direction of the points. इसके बाद एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट्स को लिखना है. क्लियर है? आगे जा सकता हूं? सब कुछ क्वेश्चंस देता हूं. सेक्शन फॉर्मूला में आपको करना है. So the question is, in what ratio is the line segment joining the points -4, 2, 8, 3 is divided by y-axis. Also find the point of intersection. एक क्वेश्चन है. In what ratio is the line segment joining the points -4, 2 and 8, 3 is divided by y-axis? Also find the point of intersection. इसका मतलब है जैसा आपका ग्राफ है. If this is x-axis and y-axis, रफली आप देख लीजिए -4, 2 पॉइंट यहां होना चाहिए, राइट? एंड 8, 3 पॉइंट
will be somewhere here. So if you join A and B, आप देख सकते हैं this line segment is being cut by y-axis. सही है? So let this point be P. The question is, in what ratio is this line segment is being divided by y-axis? इसका मतलब ये वाला रेशियो कितना है? Also find the point of intersection. इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट्स भी, P का कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए आपको. Okay? So how will you do this? ऐसा क्वेश्चन आप 10th क्लास में किए हैं. So starting is, let the coordinates of point P be, क्या assume कर सकते हैं? Because point P is on y-axis, you know that the x coordinate is 0. So आप 0, k assume कर सकते हैं? Yes or no? Yes, sir. And let the ratio in which So M1 is to M2. P Relation. divides AB, B, देखिए यहाँ आप M is to N भी assume कर सकते हैं और lambda is to 1 भी assume कर सकते हैं. यूजुअली हम lambda is to 1 assume करते हैं. ऐसा क्यों assume करते हैं समझ में आते हैं? मान लीजिए 2 is to 3 रेशियो है. This ratio can always be divided as something is to 1. This ratio, any ratio can be converted as something is to 1. सही है कि नहीं? अगर lambda is to 1 लिखा तो you have only one unknown, so एक equation, one equation will be sufficient to solve this. M is to n लिया तो आपको 2 unknowns आ गया, so ज्यादा equations का जरूरत पड़ेगा ना. जितना unknowns introduce करते हैं उतना ज्यादा equations आपको चाहिए. समझ में आ रहा है कि नहीं? So whenever you have an unknown ratio, it is better to take lambda is to 1. ये नहीं बोल रहा हूँ कि m is to n लेने से आंसर नहीं आएगा. m is to n लेने से भी आंसर आएगा. But this is easier. Okay. So let the ratio be lambda is to 1. So this implies the point P 0, k should be equal to section formula से lambda into 8 m x2 plus n x1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. इस नंबर्स को आप इस तरफ मल्टीप्लाई करना है, इस तरफ वाला रेशियो को इस तरफ मल्टीप्लाई करना है. समझ में आ रहा है? सो 8 lambda minus 4, 1 into minus 4 by lambda plus 1, 3 lambda plus 2 by lambda plus 1. So by comparison, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर्स है, x coordinate should be same as x coordinates, y coordinate should be same as y coordinates. So lambda find करने के लिए मैं x coordinate यूज करता हूँ. 0 is equal to 8 lambda minus 4 by lambda plus 1. So lambda plus 1 इस तरफ multiply किया तो 0 हो जाएगा. 8 lambda minus 4 is equal to 0. So lambda is equal to 4 by 8 और 1 by 2. Clear है? This implies the required ratio is how much? The ratio is 1 by 2 is to 1 or 1 is to 2. समझ में आ रहा है कि नहीं? And हाँ सर 1 ये is to 2 ही है. lambda 1 by 2 आप यहां सब्स्टिट्यूट किया तो k का वैल्यू भी आ जाएगा. k is equal to y coordinate is equal to y coordinate है ना. 3 lambda plus 2 by lambda plus 1, 3 by 2 plus 2 by 1 by 2 plus 1, that is equal to 7 by 3 LCM लेने के बाद. क्लियर है? तो 0, 7 by 3 है. हाँ. इंटरसेक्शन का पॉइंट. Hence the coordinates of P are
0,7/3. क्लियर? सो एक पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट को y एक्सिस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं. इफ यू वांट टू फाइंड दैट रेशियो, फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सही से एज्यूम करिए. y एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट 0 होगा, x एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट 0 होगा. रेशियो को यूजुअली हम λ/1 एज्यूम करते हैं, m/n भी एज्यूम कर सकते हैं, आपको आंसर आ जाएगा, बट दिस इज बेटर. क्लियर है ये? नोट किया? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the ratio in which x-axis divides the line segment joining A 1, 2 and B -3, 4. Find the coordinates of point of intersection. So if you want to solve this question, लगभग सेम क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है. So what is the first point? A 1, 2. Roughly plot कर लीजिए. And B is -3, 4. ये B को ज्वाइन कर लीजिए. अब ध्यान से देखिए, दिस AB is not even cutting x axis. सही है क्या नहीं? क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द रेशियो इन विच x axis divides this line. So x axis तो इस लाइन को कट ही नहीं कर रहे. So कौन सा रेशियो में डिवाइड करेगा? एक्सटर्नल डिवीजन. External हाँ. division. External. So this is an example of external division. आप देख सकते हैं इस लाइन को आप एक्सटेंड किया तो कहीं ना कहीं वो x एक्सिस को मीट करेगा, राइट? So this point P divides AB in an external ratio. सही है क्या नहीं? This is to this. Clear? So वो रेशियो हम फाइंड करेंगे. So let the ratio in which x-axis cuts AB B λ/1. अभी आपको पता है एक्सटर्नल रेशियो जो है यूजुअली नेगेटिव आता है, राइट? बट यहां आप नेगेटिव लेने का जरूरत नहीं है. जस्ट टेक दिस एज λ/1. अगर एक्सटर्नल रेशियो है तो सॉल्व करने के बाद लैम्डा नेगेटिव आ जाएगा. सो इनिशियली यू डोंट नीड टू assume whether it is external ratio or internal ratio. The equations will know by themselves whether it is external ratio or internal ratio. आपको पहला कुछ assume करने का जरूरत नहीं है. Is it clear? And let the point of intersection be P. को हम कैसे assume करेंगे इस बार? Because P is on x-axis, इस बार h, 0 assume करेंगे. प्रीवियसली y एक्सिस में है इसलिए 0, के x कोऑर्डिनेट को 0 किया. इस बार x एक्सिस में है, सो h, 0. क्लियर?
समझ में आ रही है? So now this और एक बार implies एक्सप्लेन कीजिए ना क्या है बेटा? सर, फिर से एक एक्सप्लेन करिए वो पार्ट। कि यहाँ आप डायग्राम से देख सकते हैं P एक्सटर्नल रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। यूजुअली आपको लग सकता है एक्सटर्नल रेशियो इज ए नेगेटिव रेशियो, सो माइनस लैम्डा इज टू 1 एज्यूम करेंगे, बट मैं बोल रहा हूँ ऐसा एज्यूम करने का जरूरत नहीं है। अगर एक्सटर्नल रेशियो है तो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद लैम्डा नेगेटिव अपने आप आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस So now A, B को this P is dividing in the ratio lambda is to 1. So P का coordinates from the question we are assuming it as h comma 0. But from section formula what are the coordinates of P? सेक्शन फॉर्मूला से, क्योंकि अभी हमको पता नहीं है वो इंटरनल डिवीजन है कि एक्सटर्नल डिवीजन है, सो हम जनरल इंटरनल डिवीजन ही मानेंगे। अगर लैम्डा इज टू 1, अगर मान लीजिए डिवाइड कर रहे कोई पॉइंट ए बी को, सो पी का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? mx2 plus nx1 by m plus n, my2 plus ny1 by m plus n. So lambda into minus 3 lambda plus 1 into 1 1 by lambda plus 1, 4 lambda plus 2 by lambda plus 1. ओके okay? इसमें कुछ दिक्कत नहीं है ना? अब देखिए क्या होने वाला है। दिस इंप्लाइज y कोऑर्डिनेट्स को एज्यूम आप इक्वेट किया तो 4 lambda plus 2 by lambda plus 1 is equal to 0. 4 lambda plus 2 is equal to 0. So lambda is equal to minus 1 by 2 आ गया। देखिए इसका मतलब क्या है? The required ratio is minus 1 by 2 is to 1. That is minus 1 is to 2. That is minus 1 is to 2. नेगेटिव रेशियो का मतलब क्या है? 1 is to 2 externally. Okay? इसका मतलब x axis is dividing AB in the ratio what? 1 is to 2 externally. Clear है क्या नहीं? एंड ये लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1 by 2 आप दूसरा इक्वेशन में पुट किया तो आपको h का वैल्यू आ जाएगा। एंड h इज इक्वल टू minus 3 lambda plus 1 by lambda plus 1, that is equal to minus 3 into minus half, 3 by 2 plus 1 by minus 1 by 2 plus 1, so 5 आ जाएगा आपको। इसका मतलब p का कोऑर्डिनेट्स क्या है? 5, 0। इक्वेशन क्लियर है? कुछ डाउट है तो बोलिए इसमें। आदित्य, अभिरूप, चर्चिल, ऋतिक, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का एक स्पेशल नाम है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ABCD is a parallelogram.
ABCD is a parallelogram. A is 1, 2. B is 5, 6. C is -1, -3. D is equal to how much? ये क्वेश्चन है. इसका मतलब एक पैरेललोग्राम का 3 पॉइंट्स आपको मिल गया. सर हाँ, सर डायगोनल्स इंटरसेक्ट को एक ही जगह करते हैं सर, उसको कॉमन लेके कर लेंगे. हाँ, D इसका निकल जाएगा. अच्छे से एक्सप्रेस करिए, क्या बोलना चाह रहे हैं. डायगोनल्स, व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट यू आर ट्राइंग टू से? सर डायगोनल्स इंटरसेक्ट जहाँ करते हैं सर. नहीं, हाँ, जहाँ करते हैं क्या होता है? सर मिड पॉइंट को सेम इक्वेट रेशियो कर डिवाइड देंगे करते हैं सर, AC सेम और रेशियो BD से. को. इसका करेक्ट वर्डिंग क्या है? व्हाट इज द करेक्ट वर्ड? बाइसेक्ट ईच अदर सर. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है. सो पैरेललोग्राम का 3 कोऑर्डिनेट्स अगर मिलते हैं आपको, अगर 4th कोऑर्डिनेट आपसे पूछते हैं, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से करने के लिए कोशिश किया तो बहुत लंबा है क्वेश्चन. इसके लिए एक शॉर्टकट है. ठीक है. विच इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल्स बाइसेक्टिंग ईच अदर. सो एक पैरेललोग्राम का 3 कोऑर्डिनेट्स मिल गया तो 4th कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करना है? सो इन ए पैरेललोग्राम diagonals bisect each other. सही है क्या नहीं? इसका मतलब है अगर फर्स्ट डायगोनल AC ड्रॉ कर लीजिए, BD ड्रॉ कर लीजिए, दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा? सेम होना चाहिए, राइट? सो मिड पॉइंट ऑफ AC is same as midpoint of BD, right? So this implies AC का midpoint formula याद है? x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. सही है? Yes, sir. So 1 minus 1 by 2, 2 minus 3 by 2. सही है? Is equal to, what is the midpoint of BD? 5 plus h by 2, 6 plus k by 2. सही है? अब आपको शॉर्टकट समझ में आ रहा होगा. इफ यू इक्वेट दीज टू, ये दोनों को इक्वेट किया तो h आ जाएगा, ये दोनों को इक्वेट किया तो k आ जाएगा. बट यह शॉर्टकट ऑब्जर्व करिए, ये 2 नीचे, डू यू ऑब्जर्व दिस? डिनोमिनेटर में जो 2s है वो कैंसिल हो रहा है क्या नहीं? राइट और रॉन्ग? Yes, sir. यस सर. है ये 1 और -1, इस डायगोनल का x कोऑर्डिनेट्स ऐड किया तो कितना आया? 0. तो 1 minus 1 0 इज इक्वल टू, ये दोनों का x कोऑर्डिनेट्स ऐड कर लीजिए, वो भी 0. सो सिंपली h इज इक्वल टू कितना है? -5. ओके. अब ये दोनों y कोऑर्डिनेट्स को ऐड किया तो कितना आया? 2 and -3. ये दोनों y कोऑर्डिनेट्स को ऐड किया तो कितना आया? -1. सो ये दोनों y कोऑर्डिनेट्स को भी ऐड किया तो सेम आना चाहिए. अब k गेस कर सकते हैं? -7. -7. k -7. समझ रहे? सो द कोऑर्डिनेट्स आर -5, -7. अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया तो आप ये क्वेश्चन ओरली बोल सकते हैं. समझ में आ रहे? जस्ट क्या करना है, ये दोनों x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना है, ये दोनों का भी सम सेम आना चाहिए. यहाँ 0 आया, यहाँ भी 0 आना चाहिए. सो 5 है तो -5. क्लियर? यस सर. ये दोनों का y कोऑर्डिनेट्स का सम -3 है, सॉरी -1. तो ये दोनों y कोऑर्डिनेट्स का भी सम -1 आना चाहिए, राइट?
इसका मतलब 6 है तो -7। ओरली बोल सकते हैं अगले बार से। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देने वाला हूं यही मॉडल में। इस बार आई वोंट डू एनी वर्किंग, आई वांट यू टू टेल द आंसर ओरली। ओके, लॉजिक समझ में आया ओरली बोलने का लॉजिक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखिए पैरेललोग्राम क्वेश्चन में सेकंड टाइप नोट किया। अगर ये नोट किया तो बोलिए, अगला क्वेश्चन में जाएंगे। नोटेड सर। Noted, sir. Noted, sir. ओके Sir, noted. ओके गुड। सो नेक्स्ट पैरेललोग्राम क्वेश्चन का ही दूसरा टाइप क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का तीनों साइड्स का मिड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स देता हूं। DEF आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB BC एंड CA। D का कोऑर्डिनेट्स 1, 1, E का कोऑर्डिनेट्स 5, 7, F का कोऑर्डिनेट्स -2, 3। The question is, can you find the coordinates of A, B and C? अगर ये कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। कुछ दिमाग लगा सकते हैं इस क्वेश्चन का और पैरेललोग्राम क्वेश्चन के बीच में रिलेशन क्या है? व्हाट इज द रिलेशन? इज देयर एनी रिलेशन? इस क्वेश्चन तो ट्रायंगल सा क्वेश्चन है ना, आगे मैंने पैरेललोग्राम से लिखे। सर ADEF पैरेललोग्राम है। हाँ, यहाँ हम मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर रहे हैं। मिड पॉइंट, so what does midpoint theorem say? The line joining the midpoints of any two sides is parallel to the third side, right? And the line joining the midpoints of any two sides is parallel to the third side. Say, so will this be a parallelogram? ये पैरेललोग्राम होगा Yes, ना? sir. Yes, sir. तो ए का कोऑर्डिनेट्स इस बार मैं डायरेक्टली लिखने के लिए कोशिश करता हूं। कैसे करना है? 1 एंड -2 जोड़ के कितना है? व्हाट इज द सम? -1, राइट? सो ये ऑपोजिट, ये दोनों एक्स कोऑर्डिनेट्स ऐड किया तो भी -1 आना चाहिए। सो एक तो 5 है, सो दूसरा क्या होना चाहिए? -6. नेक्स्ट 1 एंड 3 ऐड किया तो 4, राइट? सो यहाँ भी ये दोनों ऐड किया तो भी 4 आना चाहिए। सो व्हाट इज द नंबर दैट शुड -3. -3. बी? बहुत अच्छा है, ओरली हो रहे। अब नेक्स्ट ये दोनों ज्वाइन किया तो अब ये भी एक पैरेललोग्राम है ना, राइट? Sir, 8,5. अब बी गेस करेंगे। देखिए ये दोनों ऐड किया तो 6 आया, ये -2 को क्या ऐड करने से 6 आएगा? 8. Sir, हमें 8,5. तो यहाँ 5 होना चाहिए, राइट? एंड दिस इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। 2,9. तो ऑपोजिट, ये डायगोनल का सम या तो 3 आ रहे हैं, तो यहाँ 2 आना चाहिए। एंड 7 + 3 is 10, 1 + 9. 9। 9. सिंपल लग रहे? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. Find the value of k so that this point and this point are collinear. अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के. कौन सा प्रॉपर्टी यूज करके करेंगे? एरिया इज 0. कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0. 0. सो देखिए, so area is a half of staircase containing. ठीक है, कोई भी पॉइंट से, क्योंकि 3 ही पॉइंट्स है, आप कैसे भी लिख सकते हैं. सो 5 7 से स्टार्ट करता हूं. -1 -3 k1 5 7 अगेन. ओके, दिस इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, राइट? ओके, सो डाउनवर्ड एरोस कितना आ रहे हैं? -15 -1 + 7k. ओके, upward arrows minus of -7 + 7 minus of -3k + 3k -5 is equal to 0 होना चाहिए, right? So this implies 10k -21 is equal to 14 आ रहे, right? So k is equal to 7/5. Okay or not? Yes, sir. Yes, sir. Easy है? So k will be 7/5. Good. So if you have 3 points which are collinear, then area equal to 0 concept use करके आप जो unknown है वो निकाल सकते हैं. Clear? आगे जाएंगे. नोट कर लीजिए. नोट किया? Next question is find the ratio in which the line segment joining these 2 points is divided by the point -1 comma. Also find k. इसका मतलब है ये भी पॉइंट्स है 1,3 एंड 4,7. बोला कि बीच में एक पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट माइनस y कोऑर्डिनेट आपको पता नहीं है.
सो अब ये रेशियो कितना है, दैट्स द क्वेश्चन. सो ऐसा क्वेश्चन आप कैसे करिएगा? इफ यू वांट टू फाइंड स्पेसिफिक रेशियो, so find the ratio in which this line segment is divided by this point. सेक्शन फार्मूला सर, सेक्शन फार्मूला. So starting है, let the ratio be lambda is to 1, right? यही है ना फर्स्ट स्टेप. So this implies p जो -1 कमा k according to the question है, उसका कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला से क्या आना चाहिए? mx2 plus nx1 by n. So 4 lambda plus 1 by lambda plus 1. Next 7 lambda plus 3 by lambda plus 1. Right? Okay or not? So अब lambda अगर निकालना है, क्या करना है? जस्ट नीड टू इक्वेट. एक बार x कोऑर्डिनेट्स इक्वल किया आ जाएगा, वो लैम्डा को आप तो k आ जाएगा, राइट? So 4 lambda plus 1 by lambda plus 1 is equal to -1. This implies 4 lambda plus 1 is equal to minus lambda minus. So 5 lambda is equal to -2. So lambda is equal to -2 by 5. Okay. लैम्डा नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या है? एक्सटर्नली डिवाइड किया है. एक्सटर्नल डिवीजन. ओके, दिस implies B divides AB in the ratio what? 2:5 externally. Okay, and this lambda's value जो -2/5 है, उसको आप यहां सबस्टिट्यूट किया तो k का वैल्यू भी आ जाएगा. So this implies k is equal to 7 times -2/5 plus 3 divided by -2/5 plus 1, which is equal to, आप एलसीएम लिया तो -14 plus 15 1 आ रहे, नीचे 3 आ रहे. सो k का वैल्यू भी आ गया 1/3. ओके, इजी. यस. अब इसमें ये लैम्डा इज टू 1 रेशियो निकालने के लिए आपको कितना स्टेप्स लगा? हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड? फर्स्ट लैम्डा इज टू 1 एज्यूम किया, इसके बाद सेक्शन फॉर्मूला से पॉइंट लिखा हो मैंने, इसके बाद इक्वेट करके आई गॉट द वैल्यू ऑफ लैम्डा ऑन सॉल्विंग. ओके, अब क्वेश्चन है, is there any shortcut to find this -2/5 directly? देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, शॉर्टकट टू फाइंड रेशियो. ये -2/5 डायरेक्टली इस डायग्राम में दिख रहा है आपको कहीं? In this diagram directly can you see -2/5? ये -2/5 आपको डायरेक्टली कहीं दिख रहे हैं? ध्यान दे दीजिए एक बार, मैं -2/5 मैं दिखाता हूं आपको. अब ये 3 पॉइंट्स ले लीजिए, टेक दीज 3 पॉइंट्स. ये तीनों पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट्स आपको पता है ना? एक्स कोऑर्डिनेट्स को राउंड कर लीजिए. कर सकते हैं? यस और नो? अब जस्ट ट्राई टू फाइंड द डिफरेंसेस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स. ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 0.
नहीं, एक 1 है, एक -1 है। 2 का सर, 2 का 1 माइनस ऑफ -1 इज 2। अब ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? -5। -2:5 दिख रहा है आपको? (2:-5) और -2:5 तो सेम है ना? सही है क्या नहीं? यस सर। सो डायरेक्टली कैसे निकालना है समझ में आ रहा है? रेशियो, अगर 3 पॉइंट्स है आपको लाइन में, अगर वो डिवाइडिंग वाला रेशियो चाहिए, यू जस्ट नीड टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द x coordinates going in one direction. ओके, अब 3 पॉइंट्स कोलिनियर और नॉट निकालने के लिए सिंपली x कोऑर्डिनेट्स जो रेशियो में, y कोऑर्डिनेट्स भी एग्जैक्टली उसी रेशियो में डिवाइड करना है ना। एक पॉइंट, एक लाइन को, या एक से ज्यादा रेशियोस आ सकते हैं, एक ही रेशियो होना चाहिए, राइट? अगर x कोऑर्डिनेट्स डिफरेंस है पर्टिकुलर रेशियो में है, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंसेस जो है कुछ और रेशियो में है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सर ट्रायंगल फॉर्म। पॉइंट्स आर कोलिनियर, समझ में आ रहा है? अगर x कोऑर्डिनेट जो रेशियो आया, y कोऑर्डिनेट जो रेशियो आया, दोनों सेम है, इसका मतलब क्या है? द पॉइंट्स कोलिनियर। कोलिनियर। क्लियर है? अब आई वांट टू गो टू some questions which you have already solved. जो पहला 2 क्वेश्चंस हम जो सॉल्व किए हैं, उस क्वेश्चंस का भी आंसर्स डायरेक्टली आप शॉर्टकट से निकाल क्या? एक क्वेश्चन याद है? एक क्वेश्चन हम सॉल्व, फाइंड द रेशियो इन विच दिस इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, राइट? सो आप यही क्वेश्चन को ऐसा मार्क किया तो 1 2 है, b is -3, 4, the p is a point on x axis, so मान लीजिए आपको रेशियो चाहिए, क्या करना है? x कोऑर्डिनेट के थ्रू करिएगा या y कोऑर्डिनेट के थ्रू करिएगा? इस क्वेश्चन में वाई वाई कर सर वाई। लीजिए, कर लीजिए। 2 - 0 कितना है? 0 2। ओके, 0 - 4 कितना है? -4। सो 2:-4, 1:2 -2, 1:2 एक्सटर्नली, वही आंसर आया देखिए नीचे। सो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आप डायरेक्टली कर सकते हैं। यस सर। यस सर। यस सर। क्लियर? आज वेडनेसडे है ना, और 2 क्लास है। नेक्स्ट मंडे आपका कौन सा टेस्ट होगा? डिफरेंशिएशन का बेसिक। डिफरेंशिएशन सर। ओके, डिफरेंशिएशन का बेसिक टेस्ट है ना। ओके, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी याद है? ये वाला क्वेश्चन भी किया ना स्टार्टिंग में। यस सर। इसका भी देखिए आंसर डायरेक्टली आएगा क्या? इस बार देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट आर सर। नोन। सर एक्स कोऑर्डिनेट से जाएंगे सर। हाँ, ये डिफरेंस कितना है? -4। -4, ये डिफरेंस कितना है? -8। तो -4:-8 का मतलब क्या है? 1:2 इंटरनली, 1:2। वही आया देखिए आपका आंसर। एक छोटा मोटा शॉर्टकट से अगर पता है तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा आपको। इज इट क्लियर? यस सर।
सो आपका जो भी बोर्ड का टेक्स्ट बुक है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा में, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है दैट विल बी ए रिविजन एक्सरसाइज, डिस्टेंस, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो ये एक्सरसाइज, ठीक है, तो एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए नेक्स्ट क्लास, एंड उस एक्सरसाइज से जो भी आपको डाउट्स है वो आप पूछ सकते हैं। Now let us for first topic in straight lines. ये निकाल रहा हूं। So let us go to our first topic in straight lines. So the first thing that you need to understand about straight lines is inclination of a line. मान लीजिए XY कोऑर्डिनेट सिस्टम है, you have XY कोऑर्डिनेट सिस्टम, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव साइड को हम x डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, positive axis, negative y-axis. They are intersecting at origin. Okay. Assume that you have a general straight line, this xy plane. If you take any general straight line on this xy plane, how will you describe the direction of this straight line? The first question is how to describe the direction of straight line. A straight line का डायरेक्शन है, ऑब्वियसली ये कुछ ऐसा डायरेक्शन में जा, उस डायरेक्शन को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कैसे बोलिएगा? विद द हेल्प ऑफ सम नंबर्स. One of the parameters that is recommended to describe the direction is inclination of a line. इसको हम theta बोलते हैं. This theta is nothing but the angle that this straight line makes with x-axis. ये straight line x-axis से कौन सा angle बना रहे हैं? This angle, right? So मान लीजिए the line makes an angle of 45 degrees with x-axis. Can you understand the direction of the line? एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. मैं बोल रहा हूं a straight line is making an angle of 45 degrees with x-axis from the straight line. Can you understand the direction of the straight line? Yes or no? Yes, sir. कैसे होगा लाइन? लाइन कर रहा हूं वैसा ही होगा लगभग. Yes, sir. But there is no confusion here. कैसे 45 डिग्रीज विद एक्सिस, वो लाइन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना, ये वाला एंगल भी 45 डिग्रीज हो सकता है, सही कि नहीं? सो देयर इज ए स्मॉल कंफ्यूजन हियर. मतलब 45 डिग्रीज का ये वाला लाइन मानेंगे, ये वाला डायरेक्शन को मानेंगे, या ये वाला डायरेक्शन को मानेंगे? सो इंक्लिनेशन इज डिफाइंड मोर स्पेसिफिकली. ओके, सो इंक्लिनेशन का डेफिनेशन देखिए. द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन is the angle made by the line with the positive direction of x-axis. With the positive direction of x-axis.
समझ में आ रहे? यूजिंग द स्टैंडर्ड कन्वेंशन. सो इंक्लिनेशन का मतलब क्या है? एंगल मेड बाय लाइन with the positive direction of x-axis measured in counterclockwise direction. To be very specific, the definition देखिए, the angle made by the line with the positive direction of x-axis in the counterclockwise direction. मान लीजिए ये लाइन है, सो कहां से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से और काउंटर क्लॉकवाइज जाना है. सो इंक्लिनेशन 45 डिग्रीज का मतलब ये वाला लाइन आएगा. इस लाइन की इंक्लिनेशन क्या होगा? आप पीछे से नेगेटिव डायरेक्शन से आप मेजर नहीं कर सकते. सो दिस कैन नॉट बी मेजर्ड लाइक दिस. सो अगर इस लाइन की इंक्लिनेशन मेजर करना है, कहां से मेजर करना है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से मेजर करना है. इसका मतलब यहां करना है. और कौन सा डायरेक्शन में मेजर करना है? काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इसका मतलब आप इस तरफ भी मेजर नहीं कर सकते हैं, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा ना, इस तरफ मेजर नहीं कर सकते हैं, ऐसा मेजर करना है. सो अगर ये 45 डिग्रीज है तो दिस विल बी समथिंग लाइक 135 डिग्रीज. So if I say the inclination of my line is 45 degrees, there will be only one line which has the direction. Clear है क्या नहीं? Okay? Inclination का definition समझ में आ रही? Yes, sir. Now I'll give you some lines. I want you to find the inclinations. Okay? Note कर लीजिए definition. Note किया? So I have given you some lines. इस लाइंस का इंक्लिनेशन निकालना है. सो अगर मान लीजिए दिस इज माय लाइन, इसके बारे में मैं बोल रहा हूँ यहाँ एंगल 60 डिग्रीज है. सो कैन यू फाइंड द इंक्लिनेशन? इसका इंक्लिनेशन कितना है? 30 डिग्री सर. 30 degree. 30 डिग्रीज होगा. क्यों? क्योंकि इंक्लिनेशन का मतलब है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज में जो मेजर करेगा वो इंक्लिनेशन होगा. सो अगर ये 60 डिग्रीज है तो ये 30 डिग्रीज होगा. ये 30 है तो ऑपोजिट एंगल ये भी 30 डिग्रीज होना चाहिए. ओके? सो व्हाट विल बी द इंक्लिनेशन ऑफ दिस? 120. 120 degree. क्योंकि इंक्लिनेशन का मतलब ये वाला लाइन, ये वाला एंगल है. ओके? ये 30 डिग्रीज है तो ये भी 30 डिग्रीज होगा. ये वाला 60 डिग्रीज होगा. ये 60 डिग्रीज है तो ये 120 डिग्रीज होगा. सो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्रीज. सो व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन? 90 degrees. 90 degrees. सो अगर इंक्लिनेशन 90 डिग्रीज का मतलब क्या है? द लाइन इज पैरेलल टू y. Y axis. Y axis. What is the inclination of this? 0 degree. 0 degree. 0 degrees. Okay? Because the angle made by this line with positive direction of x-axis is 0. What is the inclination of this line? 30 degrees. 30 degree sir. है ना? 30 degrees, right? क्योंकि ये 60 है तो ये भी 60 degrees. ये वाला 30 degrees हो जाएगा. What is the inclination of this line? 35 degrees. कितना होगा? ये this angle is the inclination, right? So 135 degrees. So inclination निकालना समझ में आ रहा है?
Yes, sir. So this angles which you have can also be expressed in radians. इसको आप pi by 6 बोल सकते हैं, इसको आप 2 pi by 3 बोल सकते हैं. This is pi by 2 radians. This is 0. This is again pi by 6. This is 1. 45 is pi by 4. ये 3 times pi by 4. 3 pi by 4. Okay. रेडियंस में लिखना आता है? Yes, sir. सो वर्टिकल लाइन का इंक्लिनेशन कितना होगा? 90 degree. 90 degrees. हॉरिजॉन्टल लाइन का इंक्लिनेशन 0 degree. okay? 0. So inclination theta ranges between, inclination का वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होगा? कुछ गेस कर सकते हैं? Sir, 0 से 180. स्टार्टिंग विथ 0 एंड 180 डिग्रीज. 180 पे ओपन होगा. क्यों समझ में आ रहे? Yes, sir. Yes, sir. क्यों? Sir, 180 मतलब ही वहाँ 0 हो जाएगा. हाँ, 180 का मतलब फिर हॉरिजॉन्टल हो गया ना. सो अगर हॉरिजॉन्टल है तो उसको 180 नहीं बोलेंगे, उसको 0 बोलेंगे. इंक्लिनेशन क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes, sir. Inclination theta varies between 0 and 180 degrees. Clear? Next is called slope of a line. जैसे inclination of a line is an angle, वैसा ही एक और नंबर और एक और पैरामीटर है slope. इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके? एंड m is defined as tan theta. m is defined as tan theta. इसलिए जो भी एंगल है उसका tan. क्लियर? सो अब फिर पीछे जा रहा हूं. गोइंग बैक. सो इस लाइन का स्लोप कितना होगा? जो भी इंक्लिनेशन है उसका Tan tan is 30. the slope. tan 30 Tan 30. degrees. कितना? So 1 1 by root 1 3. by root 3. याद है? नेक्स्ट. Yes, sir. व्हाट इज द Tan स्लोप? 120. Tan 120. 120 डिग्रीज. कितना होगा? Minus root 3. माइनस रूट 3, क्योंकि 120 इज अलाइड विद 60 डिग्रीज. 60 डिग्रीज का ही नंबर होगा बट विद ए नेगेटिव साइन, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है. नेक्स्ट, व्हाट इज स्लोप? Infinity. ठीक है, So undefined है ना sir? अनडिफाइंड और इन्फिनिटी. ओके? इसका मतलब वर्टिकल लाइन का स्लोप कितना होगा? इनफाइनाइट होगा. ओके? व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस? 0. 0. tan 0. 0. Okay. What is the slope of this? 1 3. Tan 30 degrees again. 1 by 1 by root 3. root 3. Okay. Slope minus 1. Minus 1. tan of 3 pi by 4 minus. So आपको ये दिख रहा है, slopes can be either positive or negative, right? Slopes कब positive होगा? अगर इंक्लिनेशन एक्यूट है तो. ओके? इंक्लिनेशन एक्यूट है तो स्लोप पॉजिटिव आएगा. इंक्लिनेशन ऑब्ट्यूज है तो स्लोप नेगेटिव होगा. ओके? क्लियर? स्लोप का मतलब समझ में आ रहा है? Yes, sir. अगर दो लाइंस का इंक्लिनेशन अगर सेम है तो, इफ टू लाइंस हैव सेम इंक्लिनेशन, मान लीजिए इसका भी इंक्लिनेशन 30 है, इसका भी इंक्लिनेशन 30 है,
ये दोनों लाइंस के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? द लाइंस आर पैरेलल। parallel to each other, okay? है ना? If the lines are parallel, then their inclinations are equal. If the inclinations are equal, the lines are parallel, okay? And same thing can be said about slopes. Slopes are equal implies the lines are parallel, okay? है ना? सारा पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होगा ना? अगर मान लीजिए एक और हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक और हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका पोजीशन जहां भी हो, ऑल द स्लोप्स आर सेम. इसका पैरेलल लाइंस ड्रॉ किया तो सारा पैरेलल लाइंस का इंक्लिनेशन तो सेम होगा, hence the slope is also same. So slope determines what? Slope determines the direction of the line. सही है क्या नहीं? ओके. सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन? द आंसर इज how to describe the direction of a straight line. The direction of the straight So line can be one. described by 1. slope of the straight line. So tan 45 to 1 है. हाँ वो ठीक है, but how can we describe the direction of a straight line? The direction of a straight line, be it Slope. slope, समझ में आ रहे? और inclination, anything. ये दोनों एक पता है तो दूसरा निकाल सकते हैं, right? स्लोप पता है तो इंक्लिनेशन निकाल सकता हूँ, इंक्लिनेशन पता है तो स्लोप निकाल सकता हूँ. ओके, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. So we'll stop here. We'll stop here. So आपका घर में क्या करना है? आज का काम क्या है? Limits. लिमिट्स। ओके, लिमिट्स तो है, बट जो चैप्टर चल रहे हैं उसका भी करते रहना है, ठीक है? You should not leave the things that are being told in the class. अब ये स्ट्रेट लाइंस मान लीजिए एक दो दिन रुक गया, आपको बाद में याद नहीं आएगा चीजें, ठीक है? सो स्ट्रेट लाइंस का भी थोड़ा सा 1 घंटा 2 घंटा काम करिए स्ट्रेट लाइंस के ऊपर, इसके बाद Okay, टाइम sir. बचा के लिमिट्स करिए. एक बार रिवाइज करना है घर में लिमिट्स भी. Okay, sir. ओके बेटा, Okay, sir. थैंक यू एवरीवन. Thank you, sir. Thank you, sir.